we are going to start our chapter. This is acid, bases and solids. This chapter is very much important because जो नया syllabus CBSE का आया है, they have not deleted any of the thing from this chapter. So this chapter is whole going to come in the paper. So today we are starting with it, that is acid, bases and salt. So first of all, what is acid? Acid are those type of compounds which are first of all sour in taste. Sour in taste मतलब ये खट्टे होते हैं स्वाद में. कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं. sour मतलब they are sour in taste, खट्टे होते हैं स्वाद में. Second thing, they have H plus ions. They have H plus ions. H plus ions means जितने भी एसिड हैं सब जब वाटर में डिसॉल्व होंगे या वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो ये H plus ions को रिलीज करते हैं. अगर ये रिलीज नहीं कर पा रहे मीन्स दे डू नॉट हैव एसिडिक कैरेक्टर इन देम. थर्ड थिंग, अगर मैं इंडिकेटर के बेसिस पे चेक करूं सो दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड. Blue litmus into red. Fourth, they are corrosive in nature. 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 Now, there are some property of bases as well. On comparison to acid, bases are just opposite of acids. So bases are bitter in taste. What they are? Bitter in taste. ये कड़वे होते हैं स्वाद में. Second thing, they have OH minus ions in them. They have OH minus ions in them. Third thing, they turn red litmus into blue. They turn red litmus into blue. On the basis of indicator. On the basis of indicator. अभी आपको मैं इसके बाद indicator का portion ही बताऊंगा. That how we are going to rectify among acid and bases on the basis of certain indicators are given to us in our chapter. Fourth, they are also corrosive in nature. They are also corrosive in nature. मतलब जिस पोर्शन पे जाएंगे वहां कोरोजन करना स्टार्ट कर देंगे, उसके लेयर से रिएक्ट करेंगे और उसे हार्म पहुंचाएंगे. They are also corrosive in nature. So these are the certain properties of acids. अब इसके बाद हम देखने वाले हैं indicators. How we are going to check whether the compound given to us is acid or base. So basically indicator का जो पोर्शन है उसमें हमारी बुक में दो टाइप के इंडिकेटर दिए हुए हैं. One is color changing indicator and second is smell changing indicator. So अगर indicators की मैं कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूँ तो basically there are two categories of indicators. One is color changing and second is olfactory indicator. Second is olfactory indicator. तो फर्स्ट हम देखेंगे पहले कलर चेंजिंग इंडिकेटर को कि कलर चेंजिंग इंडिकेटर कैसे वर्क करता है. तो कलर चेंजिंग इंडिकेटर में हमारे पास कुछ नाम दिए हुए हैं बुक में. जैसे पहला कलर चेंजिंग इंडिकेटर है लिटमस पेपर. लिटमस पेपर. लिटमस पेपर लिचन से बनता है. लिटमस पेपर लिचन से बनता है. लिचन से एक टाइप का प्लांट है जिससे हम लिटमस पेपर को बनाते हैं. तो अगर मैं एसिड में चेक करना चाहूँ प्रॉपर्टी और बेसिस में चेक करना चाहूँ प्रॉपर्टी तो लिटमस पेपर दोनों कलर के होते हैं. रेड कलर का भी होता है और ब्लू कलर का भी होता है. तो अगर हम ब्लू कलर में डालेंगे एसिड में तो ब्लू चेंजेस टू रेड. सेम ब्लू को आप बेस में चेक करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा. लेकिन
if we are going to add red litmus paper in basis, it will convert into blue. अगर आप red को acid में change करेंगे, check करेंगे तो कोई भी change नहीं आएगा. Means blue color is converting into red in acid, red color is converting into blue in basis. Second is turmeric. Turmeric is generally yellow in color. In acid, no change in the color of turmeric, but in basis it converts into red in color. जैसे कभी कपड़े में हल्दी गिर जाती है, हम उसे साबुन में धोने लग जाते हैं, तो वो हल्दी का कलर कन्वर्ट होकर के रेड हो जाता है, बिकॉज द सोप्स दैट वी आर एडिंग इन इट, दे आर बेसिस. थर्ड थिंग, phenolphthalein. Phenolphthalein is generally colorless in nature, so ये एसिड में कलरलेस ही रहता है, लेकिन ये बेसिस में आने के बाद पिंक कलर का हो जाता है. बेसिस की प्रेजेंस में कैसा हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है. फोर्थ इज मिथाइल ऑरेंज. Methyl orange is generally red in color in presence of acid and yellow in color in presence of bases. So these are the color changing indicators. इनके अलावा और भी कई सारे दिए हुए हैं, रेड कैबेज है, हाइड्रोजीनिया है, तो उन सबको भी आपको पढ़ना पड़ेगा. बट दीज आर द बेसिक वन, द लिटमस पेपर, टर्मरिक, फेनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज. ये जो है कलर चेंजिंग इंडिकेटर है. ये जो है पूरे के पूरे कलर चेंजिंग इंडिकेटर है कि हाउ वी सब्सटेंस इज गिवन टू अस इन एसिड. तो आप उसमें इन सब चीजों को डिप करके देखिए. अगर उसके कलर इस फॉर्म में आ रहे हैं, जैसे ब्लू लिटमस को डिप किया, रेड कलर आ गया, मींस एसिड. टर्मरिक को डिप किए, कोई चेंज नहीं है, दैट इज एसिड. फेनोल्फथलीन को किए कलरलेस, दैट सेम इट इज, देन इट इज एसिड. मिथाइल ऑरेंज इज कन्वर्ट्स इनटू रेड, देन इट इज एसिड. नाउ सेकेंडली, the term is of olfactory indicator. Let me write down in bottom only. Olfactory indicator. Olfactory indicator basically they are based on the smell. ये किस पे बेस्ड होते हैं? स्मेल पे बेस्ड होते हैं पूरे के पूरे. If the compound given to us is acid and we are going to have this olfactory indicator, अगर उसमें कुछ changes आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, then we are going to judge that whether the compound given to us is acid or base. तो जैसे olfactory indicator में हमारे पास 3 इंडिकेटर है. फर्स्ट इज ऑनियन, अगेन द पोर्शन ऑफ एसिड. ऑनियन, no change in smell. In case of acid, onion on reacting with bases become odorless. Means उसकी स्मेल चली जाती है, उसकी स्मेल को आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे. सेकेंडली, वैनिला, सेम, no change in the smell in presence of acid, but in bases it become odorless. Third thing, clove. No change in the smell in presence of acid, but in bases it become odorless. Means इसकी स्मेल जब आप बेस के प्रेजेंस में लाएंगे तो गायब हो जाएगी. So these are the two different type of indicator. One is olfactory, second one is color changing. Olfactory basically वहाँ बहुत ज्यादा काम आती है जहाँ पर पर्सन को विजन प्रॉब्लम होता है, कि आप उसे टेस्ट करवा रहे हैं. If is not able to rectify by the color changing, then there is second option for them, that is olfactory. Means आप उनकी स्मेल को चेंज करवा के उन्हें फील करा सकते हैं that the compound given to them is acid or base. Okay, acid or base. So these are the indicators. Now there are some certain chemical properties on the basis of which we are going to judge whether the compound, acid and base, how they are going to react. कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, कुछ अलग अलग कंपाउंड्स हैं, जिसके बेसिस पे हम
जज करेंगे कि कंपाउंड जो है वो एसिड है कि बेसिस है। तो जो पहला है रिएक्शन वो है हाउ एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। यहां पर अभी एसिड का रिएक्शन कराना है मेटल के साथ, एसिड का रिएक्शन कराना है मेटल के साथ। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, salt is formed plus hydrogen gas is also produced. Hydrogen gas is also produced. Let me take one example. Example is HCl is an acid. HCl is an acid. देखिए वहां हाइड्रोजन प्लस एंड क्लोरीन माइनस, H प्लस आयन है, that is why it is acid. Plus metal, suppose I am taking Na. I am taking Na, that is sodium. When they react, it will form NaCl plus H2. ये जाके इससे रिएक्ट करेगा और ये गैस रिलीज हो जाएगी। देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो इसे 2 कर लेते हैं। अब क्लोरीन 2 हो गई तो क्लोरीन को 2 कर लिए, अब Na2 हो गया तो Na को 2 कर लिए। Our reaction is also balanced and the reaction with acid plus metal gives salt plus hydrogen gas. Similarly, when base reacts with metal, they also form salt and hydrogen gas is also produced. Like examples, base में मैं ले लेता हूँ NaOH, hydroxide ion, metal में ले लिया zinc. What they are going to form? Sodium zincate plus hydrogen gas. सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर 2 लगाए और फिर रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, हमें क्या मिल रहा है? दैट व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। व्हेन बेसिस रिएक्ट्स विथ मेटल दे आल्सो फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। हाउ वी विल चेक दिस हाइड्रोजन गैस कि यही रिलीज हो रही है? तो इसके लिए चेक होता है पॉपअप साउंड चेक। व्हेन this gas will release, it forms a bubble. It forms a bubble. Okay? जैसे यहाँ पर अगर आपने रिएक्शन कराया और रिएक्शन कराने के बाद अगर मान लीजिए यहाँ से गैसेस निकल रही है और ये कौन सी गैस निकल रही है यहाँ पर? हाइड्रोजन। तो हम एक सोप सॉल्यूशन ले लेता हूँ, जिससे क्या होगा, इजीली बबल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे वो हाइड्रोजन गैस यहाँ आके मिली, इसके बबल्स बनने लगेंगे। इन बबल्स के फॉर्म पास आप क्या लाएंगे? एक बर्निंग कैंडल लाएंगे, एक बर्निंग कैंडल लाएंगे। जैसे ही बबल और बर्निंग कैंडल का कांटेक्ट होगा, यहाँ पर आपको पॉपअप साउंड सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? पॉपअप साउंड। दिस पॉपअप साउंड मेक्स श्योर दैट द गैस रिलीज्ड हियर इज हाइड्रोजन गैस। जो गैस यहाँ पर निकली है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। So this is the check for hydrogen gas, pop-up sound check. Now, second thing, the reaction between metal carbonates, ये second check है ना, metal carbonates plus acid, also metal hydrogen carbonate, metal हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड। इन दोनों केसेस में जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ये भी एक चेक है, एक टेस्ट है, एक प्रॉपर्टी है एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर काउंट होती है, दैट व्हेन अ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। Also, when metal hydrogen carbonate react with acid, it forms salt plus water plus carbon dioxide. ये कुछ जनरल फॉर्मूलेज है, स्ट्रक्चर्स है। हम इसमें ही अब क्या करेंगे? एक मेटल कार्बोनेट को प्लेस करेंगे, एसिड की जगह में एसिड को प्लेस करेंगे एंड सी दैट यही कंपाउंड फॉर्म हो रहे थे नहीं हो रहे। जैसे अगर मैं फर्स्ट वाले केस के लिए फॉर्म करूं तो मेटल कार्बोनेट आई एम टेकिंग Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट plus acid HCl. See, the sodium will react with chlorine and form NaCl plus hydrogen will react with oxygen to form H2O and CO2 gas is also
released. CO2 gas is also released. Now it's turn to balance it. Na2CO3, Cl is 2, and then here Cl is 2. In my opinion, it is balanced now. 2 chlorine, 2 chlorine, 2 sodium, 2 sodium, carbon 1, carbon 1, oxygen 3, oxygen 3, and yeah, everything is balanced now. So this is salt, water, and carbon dioxide. Again, if I'm going to take the example of metal hydrogen carbonate, I'm going to take it sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate और कॉमन नेम बोलूं तो बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा ये वही सोडा है जो केक्स में डाला जाता है उसे फ्लफी और स्पंजी बनाने के लिए. तो जब ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म ऑल्सो सॉल्ट प्लस वाटर plus carbon dioxide gas. Now see, it is already balanced reaction. So what are the compound forms when metal carbonate react with acid? Salt, water and carbon dioxide. Now this carbon dioxide, जैसे मैंने यहाँ हाइड्रोजन का टेस्ट बताया था कि हाइड्रोजन के टेस्ट के लिए आप क्या करिए, पॉपअप साउंड टेस्ट करिए. पॉपअप साउंड टेस्ट, बर्निंग कैंडल लाइए, पॉपअप साउंड हो जाएगा. इसके लिए दो टाइप के टेस्ट है. अगर आप CO2 के पास बर्निंग कैंडल लाएंगे देन इट विल एक्सटिंग्विश, वो बुझ जाएगी. ठीक है, जैसे हम कैंडल ब्लो करते हैं बर्थडे के टाइम पे, तो उस टाइम हम CO2 कैसे रिलीज करते हैं, इट इज गोइंग टू एक्सटिंग्विश. फर्स्ट टेस्ट. सेकंड टेस्ट क्या है, इफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस. अगर मैं इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर रहा हूं तो ये जो लाइम वाटर है इसे मिल्की बना देती है. इसे क्या करती है, मिल्की बना देती है. लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट विल बी इन मिल्की स्टेट. कैसे स्टेट में आ जाएगा ये, मिल्की. मतलब इसका कलर जो है अभी ट्रांसपेरेंट रहता है, कलरलेस रहता है, लेकिन जैसे ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आकर मिलती है ये कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है. एंड वाटर विल बी ऑल्सो फॉर्म्ड ओवर हियर. अब इसके लिए एक और टेस्ट है यहाँ पर कि अगर मैंने एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी, अगर मैंने एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दी यहां पर, ठीक है. अगेन आई एम गोइंग टू राइट दिस रिएक्शन ओवर हियर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे लाइम वाटर भी कहते हैं या फिर स्लेट लाइम भी कहा जाता है. जब इस पे मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करा रहा हूं सो इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, ये व्हाइट या फिर मिल्की बोल सकते हैं इसे, मिल्की. एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है और वाटर यहां पर साथ में प्रोड्यूस हो जाता है. तो अगर ये था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कलरलेस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऐड किया गया तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, दैट इज मिल्की इन नेचर. अगर मैं इसमें और अमाउंट में, इसी प्रोडक्शन में मैं और अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, बीच में आ गया, ठीक है जी. सो वाटर इज फॉर्म. जैसे मैं बताना चाहूँ कि एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें अगर ये अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है, इसमें हमने CO2 ऐड की. जैसे CO2 ऐड की क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर इज ऑल्सो फॉर्म. अगर इसमें और अमाउंट में CO2 को ऐड करते रहेंगे तो ये जो मिल्की यहाँ पर बना हुआ है ये क्या हो जाएगा, वापस से वाटर में सॉल्युबल होकर के बना लेगा CaHCO3 होल ट्वाइस. एंड ये वापस से कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा. वापस से कैसा हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा. मतलब अगर मैं थोड़े से अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर रहा हूँ तो ये मिल्की हो रहा है, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते ही जा रहा हूँ, ये जो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ है प्लस वाटर, अगर इसमें और मैं कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते जा रहा हूँ तो ये जो कंपाउंड यहाँ पर बन रही है वापस से कलरलेस हो जा रहा है.
ये क्या है, कलरलेस कंपाउंड। मतलब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने पर ये कैसा हो जाता है, पूरा का पूरा कलरलेस हो जाता है, दैट इज सॉल्यूबल इन वाटर। सो ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट है कि आपको कई बार पेपर में देगा that a gas is produced which turns lime water milky, a gas is produced which turns lime water milky. So that gas name is carbon dioxide gas. That gas name is carbon dioxide gas. ये जो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर बना हुआ है, this calcium carbonate has different forms. जैसे एक है लाइम स्टोन का फॉर्म, दूसरा है मार्बल, तीसरी है चॉक। ये सब जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। सबका फॉर्मूला एक ही है, बस फॉर्म्स अलग अलग है। जैसे पहला है चॉक, दूसरा है मार्बल, तीसरा है लाइमस्टोन। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ द थर्ड पार्ट इज, देखिए हमने दो पार्ट पढ़ लिया ना, एक पढ़ा हमने हाउ एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, बेसिस रिएक्ट विद मेटल, फिर कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ। अब तीसरा है हाउ एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस और हाउ बेसिस रिएक्ट विद एसिड। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट और वाटर, बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। जैसे एग्जांपल देना चाहूं, HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH, it will form NaCl plus H2O. So this is salt, this is water. So when acid react with base, they both neutralize each other. अगर दोनों का स्ट्रेंथ सेम है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज का मतलब है दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, रेड्यूस कर देंगे, और जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो न्यूट्रल होगा इफ द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ आर सेम, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ आर सेम। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन reaction, a type of reaction in which acid and bases react together to form salt and water. ये indigestion के केस में बहुत ज्यादा यूज होती है। Our stomach carries HCl, कभी कभी ओवर ईटिंग के कारण हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लग जाती है, दैट इज कॉल्ड indigestion. So at that case what we are going to eat any type of base, that baking soda या फिर milk of magnesia, that is magnesium hydroxide, और वो जैसे ही जाके पेट में HCl से रिएक्ट करेगा तो वो एक सॉल्ट बना लेगा और साथ में वाटर। जो सॉल्ट रहेगा वो टॉक्सिक नहीं रहेगा और जो वाटर फॉर्म हो रहा है वो बॉडी दोबारा से यूज कर लेगी। तो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फोर्थ केसेस ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ एसिड, मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। यहां पर भी सॉल्ट बनेगा एंड वाटर। आपको स्ट्रक्चर जरूर याद रखना है बिकॉज स्ट्रक्चर के बिना शायद ही आपकी रिएक्शन कैरी हो पाए या आप रिएक्शन को कर पाए। तो स्ट्रक्चर में जैसे मेटल ऑक्साइड में अगर मैं लेना चाहूं तो आई एम टेकिंग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस एसिड HCl, व्हाट इट विल फॉर्म, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। थोड़ा सा इसे बैलेंस कर लेते हैं पहले, तो इट विल फॉर्म हियर 2। So this is a salt form and this is our water. So salt and water is formed in the case of metal oxide plus acid. इसके बाद how non-metal oxide react with bases. Non-metal oxide react with bases. यहां पर भी यही होगा, salt and water. जैसे केस लेना चाहो तो नॉन मेटल ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता हूं बिकॉज दिस इज नॉन मेटल ऑक्साइड, बेस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इट विल फॉर्म, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया था कार्बन डाइऑक्साइड चेक में। तो दिस इज द रिएक्शन बिटवीन अ नॉन मेटल ऑक्साइड एंड बेस, व्हाट इट इज गोइंग टू फॉर्म, सॉल्ट एंड वाटर। So these are the four basic chemical reactions on the basis of which we can judge acid and base कि कंपाउंड जो है वो कैसे कैसे रिएक्शंस को शो कर रहे हैं। तो दो टेस्ट है, एक हाइड्रोजन के लिए पॉपअप साउंड टेस्ट और एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये कई बार पेपर में देता है कि अ गैस रिलीज दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो वो गैस कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। सो दिस इज आवर केमिकल प्रॉपर्टीज।
ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन जज दैट कोई भी कंपाउंड जो हमारे पास दिया हुआ है वो एसिड है कि बेस है. सो आज की क्लास के लिए इतना ही. अभी नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि एसिड की स्ट्रेंथ कितनी होती है, बेसिस की स्ट्रेंथ कैसे जज करते हैं, और फिर जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, कि हमने सॉल्ट के बारे में भी कुछ नहीं पढ़ा है, तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑफ सॉल्ट. सो वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा बिकॉज मैनी ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड इन इट. ओके, थैंक यू.